once you start into the spirituality thing ना, so you don't believe in the occult. Gemstones आपके future को नहीं बदल सकते. So that's the first time when I bought some astrological books. I started research how to study, how to get a degree. Since the age of 19, you began consulting everyone professionally, on a professional level. On a professional level. Because I exactly knew the date when my father is going to live. एस्ट्रोलॉजी के थ्रू किसी के पास्ट लाइफ के बारे में पता चल सकता है? Definitely, this is all about astrology. ओह, जब भी मैं किसी को हाथ पकड़ता था, I had used to have certain visuals. मुझे यहाँ पे बिठा दो, सामने आप एक कर्टेन लगा दो और हाथ को अंदर भेज दो. हाथ. I'll just touch and I'll tell you what's happening. ज्योतिष का मतलब ही है बैलेंस करना. और अगर आपकी सोलमेट के साथ शादी हो गई, so that's a big trauma. I have at least 500 plus doctors as my clients. रुद्राक्ष पहनने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है. इट्स अ टेस्टेड रेमेडी. मैंने बहुत लोगों के ऊपर ये दिया हुआ है और ये काम करता है. It works. Yes, magically that works. Hi everyone, welcome back to yet another podcast series with me सुष्मिता गुप्ता. और आज हमारे साथ मौजूद है the youngest astrologer of India, Dr. Saugata Dasgupta. Thank you. Thank you. Very warm welcome to our show. Thank you. It's our privilege to have you here. So हम लोगों ने बहुत सुना है आपके बारे में. So I have read many articles about you as well. So first question जो मेरे दिमाग में आता है that I should ask you is, at this young age, I mean, why astrology? How It did was you destined. how did you come into this field? Because this field is something like बहुत कम देखने को मिलते हैं young astrologer, and I think now you are 25 and you have got started I think around 6 to 7 years back. Right. So why at this such a young age? I suppose you were studying at that time. आप student थे खुद एक. Right. Yeah. Right. इसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं? Sure. When I was in NIT, basically I belong to the engineering background. Okay. I was into National Institute of Technology, Okay. the bioengineering field. I have done certain works on cancer as well. Oh. So from that time onwards, I am into astrology. I studied my diploma degrees, then postgraduate, Yes. and then completed the PhD. Yes. Now into here. The reason was now I'm feeling that okay, it was destined. That's why I was into this particular field. क्या हुआ था? At the age of 18, suddenly, all on a sudden, my father got cancer, prostate cancer. Okay. Okay. So in the very beginning time, I was an atheist. तो मुझे लगता था क्योंकि साइंस से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे लगता था ये सारी चीजें तो फेक होते हैं, है ना? जो So you never used to believe in astrology? No, not in astrology. But I was a very good follower of Bhagavad Gita. Okay. Bhagavad Gita, and I was a believer in God. I have studied Bhagavad Gita from class 3 when I was in. Since I belong to Ramakrishna Vivekananda Vidya Mandir, I was a pious person. Once you start into the spirituality thing, na, so you don't believe in the occult. Exactly. Right? So because this is always a contradictory thing. Where astrology ends, astrology ends and spirituality begins from there. Occults जहाँ पे खत्म होता है, वही से साधना शुरू होती है. ये अब पता चल रहा है. उस टाइम पे जो हमारे टीचर्स ने बताया था, हमने वही सीखा. And since I belong to Tripura, the northeast, extreme northeast. Yes. तीनों तरफ से बांग्लादेश है, एक तरह से आसाम के साथ कनेक्टेड है. So a very small city and a small state as well. तो वहाँ पे उतना एक्सपोजर भी नहीं था. Had no trust in astrology. और जितने भी एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट्स मुझे मिले थे, that was not really a trustworthy or something else. Because उस टाइम पे एस्ट्रोलॉजी का मतलब मुझे ही लगता था कि जेमस्टोन्स पहनो, ज्योतिष के पास जाओगे आपको जेमस्टोन दिया जाएगा. आपने बहुत सारे पहन के भी रखे हैं. I'll get back to it. इसके पीछे भी कुछ स्टोरी है? बिल्कुल है. Okay. वो बताऊंगा मैं एक एक करके. Yeah. तो वही चीज था और इसलिए मुझे उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं था. मुझे तो ये लगता है कि आज के दिन पे भी ये लगता है कि एक जेमस्टोन्स आपके फ्यूचर को नहीं बदल सकते. Wearing a stone can give you a job. Because I have consulted many big politicians, many big Bollywood celebrities. So I know how it works. So that time when I was in Mumbai, I used to live in Parel. Because my father got prostate cancer. So I had to take a 1 year study withdrawal from NIT. Okay. तो जहाँ पे मैं रहता था एग्जैक्टली उसी जगह पे थोड़े से दूर में एक बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजिकल सोसाइटी होता है. इंडियन एस्ट्रोलॉजिकल सोसाइटी करके एक सोसाइटी है. उनके अलग अलग चैप्टर्स होते हैं. Okay. K.N. Rao Saab is the founder. So that was the first time when my mother forced me to visit an astrologer.
that your time is really going bad. तो होता है इंडियन फैमिली में, टिपिकल इंडियन फैमिलीज में, you visit and see how it happens. So that was the first encounter of mine with an astrologer. I was at near about 16, 17 approx, Okay. 18 approx. So that time when I visited them, this person just saw me, my hand, and said everything about me. Okay. That I'm into this particular technical field, and my father is ill and he is having cancer type of disease, and he is not having a much amount of time left. तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत आई थिंक Yes, ट्रस्ट a bit, you know, at a loss type था कि how can one person speak like this? इस level पे कैसे बता सकता है? Later I got to know he was one of the chief justices of Mumbai municipality. तो उस लेवल के कोई एक इंसान थे जो आफ्टर रिटायरमेंट एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस कर रहे थे. ओके. तो एट दैट पॉइंट मुझे लगा कि उनके क्वालिटी के हिसाब से आई हैव नो एजुकेशनल वेरिफिकेशन, बट इफ अ सर्टेन पर्सन कैन डू दिस, आई शुड हैव गिवन इट ट्राई. कि है क्या उसमें, कुछ ना कुछ लॉजिक तो होगा. तो ऑन द नेक्स्ट वेरी डे आई वेंट अगेन टू कंसल्ट कि अब करना क्या चाहिए, टू टेक सम गाइडेंस, बट अनफॉर्चुनेटली ही वाजंट देयर. ओके. वो लंदन चले गए थे या यूएसए पे कहीं पे गए थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है. बट ही हैंडेड ओवर हिज माय केस टू हिज असिस्टेंट. Was just a matric pass. उन्होंने माध्यमिक तक ही स्टडी किया था, and after that he didn't study. I won't take the name. He's one of the very famous astrologers. Okay. Of Mumbai. At this time. At this time, not of that time. But he pursued PhD in astrology. But he gave me appointment after 15 days. So that was a kind of insult to me. That I felt okay. I'm an IITian, and he didn't even cross 10, and he's not giving me appointment. I was very young. Don't take me otherwise. So out of that ego, I thought, no, I will study astrology. Let's see what's there. Okay. So that's the first time when I bought some astrological books. I started research how to study, how to get a degree, and then from Mumbai, You started with self-study. yes, At first. yes, self-study. From that time, I did my diploma in astrology. Then from Delhi Lunar Astro, I got my Guru Dipanshu Giriji. Okay. He is the person for whom I am here. Then I did certain courses of his. Then I completed my masters from Delhi only. Then my PhD from Maharshi Vedic Vidya Academy of Astrology, Udaipur, Rajasthan. Okay. And later on, Astro Answer was founded. And the rest you know. So at that time, जब आपने start किया था Astro Answer, what was your age? Near I was 19. You were 19 at that time. Yes. And since the age of 19, you began consulting everyone professionally, on a professional level. On a professional level, yes. Okay. Because Nice. it was a course of near about 2.5 to 3 years. But when you start astrology, I was encountered with certain guru and sadhana. So that was the time, because since I was already spiritual from the very beginning, and my parents were having certain problems, as I said. In 2019, my father died in December 15. Okay. And within 8 months of that, my mom also died. You knew Exactly. this is going to yes. happen? That's what the point is. Oh. So that was the point when astrology felt as a curse to me. Because I exactly knew the date when my father is going to live. Oh. Throughout the sadhana, there are certain sadhana I did. तो उस टाइम पे it was a course of 3 to 4 years, but 6 months I didn't talk to anyone. None of my family members and friends After couldn't your see me. parents' death? Yes, after my parents' death. That 6 months I covered the entire course of astrology. After the sadhana, there's another encounter I would like to mention. It was when I was in class 10 or 11. I first time visited Ma Kali Ghat in Kolkata. So I have a great attachment with Ma Kali, and I am the Aradhya of, my Aradhya is Mahakaleshwar Jyotirling Ujjain. I am his great devotee, one of them, I believe so. So there's the first time when I get to touch the Shila, the feet of Ma in Kali Ghat. And that was the first time I touched, and for an instant I got fainted. Oh. On a proper note. मतलब इसके उनको पीछे टच करने से पता नहीं था मुझे उस टाइम पे. I didn't know anything. उनको टच करते ही आई हैड माई फ्रेंड्स विथ मी, मोस्टली माई फादर वॉज देयर. तो उनको टच करते ही ऑलमोस्ट फेंट जैसा हो गया था.
so they took me out of that गर्भगृह. तो इसका कुछ रीजन होता है कि Yes, I'm telling you. ओके So ये कहा जाता है अब एस्ट्रोलॉजी की भाषा में, this is a point when you get your energies back. ओके So when I studied in this deep, in today, I get to know my past life as well. I was an astrologer in my past life too. So once I am back to this particular year, in particular birth, I need to get back my energies from the past life. So this was the energy transformation when I touched her feet. दैट मीन्स एस्ट्रोलॉजी के थ्रू किसी के पास्ट लाइफ के बारे में पता चल सकता है Definitely, this is all about astrologies. ओह This is all about astrologies. That's the what the thing, pending karma, the analysis of karma. तो अब इसको अब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता साइंटिफिकली, दैट्स व्हाई आई डोंट से इट, बट व्हाटएवर यू आर, वो कर्मा ही तो है, वरना एक ही डेट पे, एक ही हॉस्पिटल पे, एक ही टाइम पे मल्टीपल बच्चों की जन्म हो रहा है. व्हाई डिफरेंट पीपल आर हैविंग डिफरेंट लाइफ? एग्जैक्टली इट्स द इम्पैक्ट ऑफ कर्मा दे आर गोइंग थ्रू. दैट्स व्हाट द बेसिक इज. दैट्स व्हाट महर्षि पराशर सेड इन पराशरी ज्योतिषी, है ना. तो दैट टाइम व्हेन आई टच्ड मास फीट, आई गॉट फेंटेड एंड यू वोंट बिलीव, soon after that, जब भी मैं किसी को हाथ पकड़ता था, I had used to have certain visuals. ओके दैट मीन्स नाउ आल्सो इफ यू टच एनीबॉडीज हैंड व्हेन यू टच Yes. माय हैंड देन उसका क्या There are certain visuals. I don't Oh. even need to see your hand properly. With just a shake hand, I can predict about you. रियली Yes. This is what called the touching method of astrology. ओह Dr. Narayan Dutt had that. ओके Dr. Narayan Dutt Shimali, one of the greatest palmists ever came across in India. ओके So astrology is actually having two major sadhana. One is Kan Pisachini, another is Panchangli. One who believes in palmistry. इन लोगों के पता है इसकी डिटेल्स क्या है. पर्टिकुलर साधना आज भी वाराणसी में ऐसे साधना देखने को मिलते हैं. I met certain monks who knew certain साधना. तो श्रीमली जी को मैं कभी देखा नहीं, मैंने उनका किताब ही पढ़ा है, उनसे बस टेलीपैथिकली कई बार बात हुई है. ओके He used to come to my dream and bless me, but you know what, it's divine thing. So that's the thing. अगर आप लोगों ने रिसेंटली एक फिल्म भी आया था राधे श्याम करके ओके यस पामेस्ट्री के ऊपर, तो उनमें जो प्रभास की जो गुरु है, गुरु की भूमिका दिखाई गई थी, it was taken from Shrimali ji only. ओके That particular character was inspired from Shrimali ji, ओके and Prabhas character was inspired from Kero, greatest palmist ever came. ओके So Kero, you came in India and stayed for a long time in India, learned Panchangli and Kan Pisachini. Then he went back to his country like London and all. So what Kero used to do? Kero used to challenge कि I don't need to come in front of you. मुझे यहाँ पे बिठा दो, सामने आप एक कर्टेन लगा दो और हाथ को अंदर भेज दो. हाथ I'll just touch and I'll tell you what's happening. दैट मीन्स यू मतलब बिना देखे बिना देखे. ओह उनके आंखों में पट्टी भी बांधी हुई होती थी और हाथ पर्दे के पीछे से आता था, वो टच करते थे और बता देते थे कि क्या हो रहा है. दिस इज व्हाट केरू डिड. ओके देयर इज अ फेमस इंसिडेंट इन लंदन. महारानी विक्टोरिया along with her 3 servants came to test Kero, and 3 of them put their hands behind the curtain. So Kero touched all of them and exactly predicted कौन सा हाथ महारानी विक्टोरिया का है, and exactly predicted who is she, what's having, क्या हो रहा है, कब उनका डेथ होने वाला था, ये भी प्रेडिक्ट कर दिया था केरो ने. दैट मीन्स हमारा लास्ट डे ऑन दिस अर्थ कब हो सकता है, दैट कैन बी प्रेडिक्टेड फ्रॉम द नॉट रियली, मैं नहीं मानता हूँ, ये भगवान के अलावा कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता. बट ऐसा होगा at this point of time An or at average this lifespan, an age. average lifespan of longevity you can predict through astrology or palmistry, but it's never a correct one. accurate नहीं बता No, सकते. not even That's accurate. just a prediction. Not even close. अगर there are certain techniques mentioned in our scriptures, like आप सामुद्रिक शास्त्रिका को पढ़ोगे जिसमें palmistry को बड़ी डिटेल्स में लिखा गया है, या फिर आप भृगुनंदी नारी को पढ़ोगे, नारी ज्योतिष को पढ़ोगे, उसमें there are certain scriptures given which defines our lifespan. But throughout my study, unless and until you are connected with someone through DNA, since I got to know about my father's death, day of death, क्योंकि मैं DNA से connected था, Yes. so I could sense this particular position. Okay. Otherwise, it's not possible to find it out. Okay. This is the only thing which only God can do. Otherwise, भगवान और मुझ में क्या difference है? Absolutely. So longevity, yes, you can guess, but you can't predict the last day. We can just मतलब guess थोड़ा कर सा, हाँ, सकते हैं guess कर थोड़ा सकते सा सिर्फ, बट वो अगर कोई अगर बोलेगा कि आप
75 kg नो आसी आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस. ऐसे मैंने बहुत हाथ देखे हैं जिनके लाइफ लाइन 75 to 85 तक है, हाँ. बट दे डाइड इन ओनली 60, 62, 52. Yeah, even the same thing happened with my father also. एग्जैक्टली. दैट्स नॉट बी एबल, क्योंकि आपके सर्कमस्टेंस के लक भी आपको इम्पैक्ट करता है. जैसे लेट मी शेयर यू वन स्टोरी. आई रिमेंबर वन ऑफ माई क्लाइंट, मैं केस स्टडी कर रहा था. Okay. ओके सो क्योंकि मेरे जो सीनियर थे कोई, उनसे मुझे सर्टेन पमिस्ट्री के पम्प प्रिंट्स मिले थे. सो आई वाज डूइंग अ रिसर्च. 2004 में एक सुनामी हुआ था, Yes. राइट, Yes, I remember. इन इंडिया. Yeah. सो उनके जो पति है वो अभी भी जिंदा है. Oh. ठीक है, तो आई गेट टू मीट हिम. तो उनके हाथ में मैंने देखा था, एंड उनको भी बहुत देर उनके पैर नहीं चले, मतलब वी गॉट हिज लेग ब्रोकन आफ्टर द हीट ऑफ द वाटर, बट वो बच गए थे. Okay. Okay. बट उनके वाइफ वहाँ पे हो गया था, उनका कुछ था नहीं. Mhm. तो उनके वाइफ का हाथ का मुझे प्रिंट मिल गया था पिक्चर से. Hmm. सो आई सो एंड आई सो हिज हैंड टू. Hmm. इनके हाथ में पानी में डूब के मरने का चांस था, Okay. हस्बैंड के हाथ में. Okay. ठीक है, दिखा रहा है. Okay. और उनके वाइफ के हाथ में ऐसा कुछ भी नहीं है. Okay. There was nothing so written about it. हाँ, but it But happened. when the incident happened, his wife died, but he survived. Yeah. How? Why his wife died? क्योंकि जब शादी होती है तो energies exchange होते हैं, Exchange. destiny भी exchange होते हैं. That's why the wife are called the better half. Okay. तो husband के वजह मतलब this is how it philosophy happens. That's how हमारे ancestors कहा जाते थे कि हाँ, औरतों में इतनी ताकत होती है कि अपने ताकत से अपने पति को बचा सकते हैं. Yeah. So there's a live example I saw. Vibrations. So she actually sacrificed her to protect her husband. Oh my God. So this is a particular event which is not really possible to predict with palmistry and astrology. It's divine, इसका मतलब अभी जो हमारा जो इसको क्या कहते हैं, हस्तरेखा, right? शादी के बाद it changes. Not changes. Lines change नहीं होते. हाँ. There are certain events जो modify होते हैं. That's why we do remedies as well. Okay. See, ज्योतिष को मैं हमेशा एक कोडिंग लैंग्वेज कहता हूँ. ठीक है, प्रेडिक्शन है ना, आप बदल भी सकते हो. इट्स एनर्जी का खेल है. तो कहा जाता है कि अगर आपके अंदर विल पावर है आप उसको बदल सकते हो. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जितना एनर्जीज है वो एनर्जीज neither can be created nor can be destroyed. Right? फिजिक्स वही कहता है. तो आपके पूरे लाइफ में आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी दिया गया है. अभी आपके ऊपर है उस एनर्जी को आप यूज कैसे करोगे. Exactly. Let me tell you an example. I remember one of a great name. अपने लेवल पे वो बहुत अच्छा काम कर रहा है. फेमस इतना नहीं है, आप लिंक्डइन में जाओगे तो बहुत कुछ देखोगे. अभी वो बहुत ही बड़ा एक बैंक का मैनेजर है. Okay. So he cleared IIT, he cleared IIM, and now he's earning 2.3 CR per month. One of my clients, so Mumbai based है. तो उनकी sunline was very strong. Okay. ठीक है, palmistry के केस में कह लो, horoscope में कह लो, sun was very powerful sun, but problem with that, sun के साथ राहु भी attached था. Okay. अब sun राहु का combination ग्रहण योग बनाता है, sun को weak करता है. Now मैंने उनको ये प्रेडिक्ट किया था, ही वाज वेरी एम्बिशियस कि मुझे आईआईटी चाहिए ही, मुझे हाई प्रोफाइल सिटी बैंक का मैनेजर ही बनना है. ठीक है, आई विल डू एनीथिंग फॉर दिस. जब मैंने उनका हाथ देखा था, आई प्रेडिक्टेड कि आपको स्टेट पे रह के गवर्नमेंट जॉब करना चाहिए इफ यू वांट एवरीथिंग टू बी बैलेंस. एस्ट्रोलॉजी क्या कहता है, आप ऐसा प्रेडिक्शन करो कि आपके लाइफ के सारे पार्ट्स बैलेंस रहे. Your family should be balanced, your career should be balanced, your health should be balanced. That's the perfection of an astrologer. लेकिन उनको वही पर्टिकुलर चीज चाहिए कि नहीं, मुझे आईआईटी में ही जाना है, मुझे आईआईएम पे ही जाना है और मुझे सिटी बैंक पे ही जाना है. उसके लिए आई कैन लीव एनीथिंग. नाउ इंटरेस्टिंग फैक्टर इज सन जो है वो फादर को रिप्रेजेंट करता है एस्ट्रोलॉजी. Yes. ठीक है, एंड सन जो है आपके लीडरशिप को रिप्रेजेंट करता है, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, जितने भी हाई प्रोफाइल एस्टेब्लिशमेंट है वो रिप्रेजेंट करता है. The moment I said कि आपको नहीं जाना चाहिए, but he said no, I will go, will force. He studied his level best. The day he joined Citibank, on the next day his father died out of an accident. How that happened? Energies equally distributed था. Yeah. अब मुझे इसी particular field में जाना है. Yes. So I took the energy from other aspect of my life Yes. and put it here. I got Citibank, but Sun represents father as well. That energy went down. So I had to lost my father.
It should be balanced. It should. This is what astrology says, na? Oh. That's why the value of astrology is here. ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ वही चाहिए, बाकी चीजें ना हो तो भी चलेगा. Right. हमें सब चाहिए होगा. Right. ज्योतिष का मतलब ही है बैलेंस करना. क्योंकि महर्षियों ने क्यों ज्योतिष को लिखा है? आज के ज़माने में कलयुग में लोगों के पास उतनी एबिलिटी नहीं होगी, टाइम नहीं होगा कि वो मेडिटेशन करे, वो करे, उस पर्टिकुलर फील्ड को समझे. इसलिए सर्टेन लेवल पे ज्योतिष को लिखा गया है सो दैट द लाइफ बिकम्स इजी. वी पीपल आर मेकिंग इट कॉम्प्लिकेटेड. एस्ट्रोलॉजी इज नॉट लिमिटेड इनटू रुद्राक्ष एंड जेमस्टोन्स. वो बैलेंसिंग है, वो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है. द मोमेंट यू अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैलेंस, आपकी लाइफ इजी है. One thing I want to know, even personally also, हमें कब पता चलेगा? I mean, I just want to know, since I'm also unmarried. Okay, in future I'll get married to someone. One thing that I think not just me, सारे लड़कियां ऐसे फील होते हैं कि अभी जैसे चलो हमारा vibrations, we know what our vibrations are, and in future when we get married to someone, वो कैसे पता चलेगा कि उनके साथ अगर करेंगे तो हमारा और अच्छा होगा या फिर हमारा और डिक्लाइन होगा, सारी चीजें. That's why एस्ट्रोलॉजी में गुण मिलान का एक कॉन्सेप्ट है. ओके. सी, इस दुनिया में अगर आप सोलमेट ढूंढ रहे हो, यस, सोलमेट आपको मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है. पूरे दुनिया में सिर्फ 0.03% को सोलमेट्स मिलते हैं. यस. और अगर आपकी सोलमेट के साथ शादी हो गई, सो दैट्स अ बिग ट्रॉमा. ओके. नाउ why I'm saying this, because once you are soulmates, Yeah. you people have a very good connection, good bondings with each other. ठीक है. तो soulmates का प्रॉब्लम ये है, एक बार आपका बॉन्डिंग बन गया, एक बार आप लोग शादी हो गई, and you will see multiple problems are coming. Take the example of Radha Krishna. Take the example of Sati Parvati. Continuously certain problems, certain cosmic problems are coming. Yes. Because your souls are matched ना. Now it's one soul only. There is no dual personality. अब लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स आपको झेलने होंगे. उसका जो प्रॉब्लम रहेगा वो हमारे पास होगा. आएगा. आपके प्रॉब्लम्स उनके पास जाएंगे. बट वी हैव सीन सर्टेन केसेस आल्सो ना, कि हमने देखा है कि शादी करने के बाद आई मीन उन लोगों का जो प्रोग्रेस होता है वो इट्स इनटू 10x राइट टू सम ऑफ द केसेस, एंड किसी का देखा है तो इट कम्स डाउन टू 0. दिस इज वी कॉल इट लेडी लक. ओके. वो बेसिकली लड़कों के साथ होता है. ओके. कि शादी करने के तुरंत बाद उनके ग्रोथ होता है. दैट्स व्हाई हमारे एंसेस्टर्स में जो राजा होते थे वो मल्टीपल्स शादी करते थे. क्योंकि उनके पंडित जो उनको कहते हैं कि नाउ एट दिस टाइम यू नीड टू गेट मैरिड विद दिस पर्टिकुलर वुमन टू अट्रैक्ट सर्टेन एनर्जी. क्योंकि जब आप किसी से शादी करते हो आप उस एनर्जी को अपनी तरफ खींचते हो. यस. किसी का अगर 7th लॉर्ड 9th हाउस में बैठ जाता है या फिर 7th लॉर्ड और 9th लॉर्ड की कॉम्बिनेशन बन जाती है, दैट मींस सून आफ्टर यू, अनलेस एंड अंटिल इट्स सैटर्न, सून आफ्टर यू मैरी, आपकी बहुत ज्यादा तरक्की होने वाली है. 7th हाउस हमारा शादी का घर है, 9th हाउस हमारा फॉर्च्यून का घर है. 7th लॉर्ड इन द 9th हाउस, 7th लॉर्ड मेकिंग एनी कनेक्शन विद 9th लॉर्ड, वो आपको शादी के तुरंत बाद बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट बनाएगा. इवन इफ इट इज सैटर्न, अगर जुपिटर के साथ है तो बहुत ज्यादा आपको फॉर्चुनेट बनाएगा. बट वन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू, दैट इज योर, ये तो चलो ठीक है जब सब कोई गुण मिला के जब शादी करते ही, दिस इज पॉसिबल ओनली टू दैट केस. नो let me complete this particular part. You asked me, I forgot, I went to some other part. That you asked कि पता कैसे चलेगा? Yes. Universe will let you know. अगर आप सही पर्सन के साथ हो, बॉलीवुड फिल्म जैसे नहीं होता है, but you will get to know. वो आपको अंदर से समझ में आ जाता है कि okay, this is the person. अब एस्ट्रोलॉजी में ऐसे inner calling. Now people when ask me, I need to see the charts. वो जनरल कोई मेथड नहीं होता है, क्योंकि आपका जो रिलेशन वो जनरल नहीं है, वो भी यूनिक है. तो जनरल नहीं होता है. कहा जाता है कि शादी की जोड़े तो बहुत पहले से बने हुए होते हैं. ओके, दिस इज डेस्टाइंड, यू कैन नॉट चूज बाय योरसेल्फ. वो बना हुआ है, जब होगा जिसके साथ होगा वही होगा. लेकिन कोशिश आपको ही करनी होगी. दैट्स व्हाई विदाउट एफर्ट का प्रोसेस है. तो पता कैसे चलता है? देयर आर सर्टेन मेथड्स. जैसे अगर 9th हाउस में किसी का मून हो, the moment you will share with your partner about your life, you will cry. आपके आंखों में आंसू आएगा. तो get to know that this is my person. अगर उसमें सैटर्न हो
हाँ. The moment you will meet with your partner, ninth हाँ. house, I'm talking about ninth house. If it's the Saturn, Yes. the moment you know with this particular person, it will be a very this dry conversation. आप comfortable feel नहीं करोगे बात क्या करें. Oh. Saturn is dry. मंगल है तो बहुत aggressive होगा. Oh. Now, why I'm saying about 9? Your 7th house is the point of marriage, right? Mm-hmm. 7वें भाव से हम शादी को देखते हैं. Now, my audience can confuse कि why are you saying about 9th house? 7वें घर से 9th house तीसरा घर दूर है, 3rd house दूर है. 3rd house is your communication. The moment you meet your partner, how your communication is being done. Based on that, you can find it out कि whether he is your partner or not. Okay. So if it is Sun, you will see okay, you are feeling very confident. सामने वाला बहुत कॉन्फिडेंट है, आपको बहुत अप्रोच कर रहा है. इट इज राहु, वो बहुत ही डिस्टर्ब सोल होगा. लेकिन लिखा वही है, यू हैव टू गेट मैरिड विद दिस पर्सन ओनली. डिस्टर्ब सोल होगा, ये करेगा वो करेगा, खाली नहीं बैठ पाएगा. उसी में अगर सैटर्न राहु बैठ जाता है तो फिर अपने से नीचे वाले लोगों को बहुत ही टीजी तरीके से बुलाएंगे. लाइक इफ यू आर गोइंग टू द डेट, यू विल कॉल द वेटर्स इन अ वेरी बैड मैनर. Oh my God. So these are the certain things which astrology has already written. Yeah. To find it out. क्योंकि हमारा कल्चर ही ऐसा है, औरतों को वो राइट दिया जाता है कि you should select your husband. That's why we had the स्वयंवर. स्वयंवर प्रथा इसीलिए था, सारे राजा आते थे और उनको चूज करना है किसके साथ रहना है. But another thing is there, ना, what if for those people जो लोग लव मैरिज करते हैं, ऑब्वियसली किसी के साथ अगर प्यार होता है जी, तो वो कुंडली देख के या फिर अगर आपका किसी के साथ प्यार हो गया तो कुंडली देखने की जरूरत ही नहीं है. नहीं, बट हाउ देयर लाइफ इज गोइंग टू बी कुंडली हम आफ्टर क्यों दे गेट देखते हैं? मैरिड. दो चीज है, कुंडली हम देखते क्यों है? कॉम्पिटिबिलिटी को मैच करने के लिए. यस, एब्सोल्युटली. ये जो आजकल का लव मैरिज है वो एंशिएंट वर्ल्ड में गंधर्व विवाह कहा जाता है. ठीक है. Now, if you have spent certain years with a person, you already know about this person. Yes. तो मैचिंग अगर नहीं होता तो आप इतने साल बिता ही नहीं पाते. Yeah. Point. तो अगर आपका कॉम्पिटिबिलिटी ठीक जा रहा है तो वो ठीक जाना चाहिए. आप कहोगे तो फिर अगर ठीक जाना चाहिए फिर इतने सारे डाइवोर्सेस क्यों हो रहा है? Exactly, that's my question. Because this generation doesn't understand the difference between attraction and love. Love is different, attraction is different. Yes. But in some of the cases ना, बहुत सारे ऐसे केसेस हम लोग देख चुके हैं कि शादी के 10 साल के रिलेशन के बाद भी शादी के 1 साल बाद उन लोगों के डिवोर्स हो जाता है. जी. तब वो लोग रियलाइज करते हैं कि ये तो वो पर्सन था ही नहीं जिससे हमने प्यार किया था. सो इसका क्या चीज है ये? दो चीजें हैं. प्रैक्टिकली समझते हैं फिर एस्ट्रोलॉजी पे आते हैं. या प्रैक्टिकली क्या होता था पहले के जमाने में, औरतों को बोलने नहीं दिया जाता था. दे आर नॉट अलाउड टू स्पीक. तो उनके ऊपर डोमेस्टिक टॉर्चर होते थे, वो सहन करके जाते थे. द मोमेंट दे स्टार्टेड रिप्लाइंग, प्रॉब्लम ऑकर्ड. तो ये जो आप कह रहे हो वो पहले के जमाने में और भी ज्यादा होता था. बट नोबडी प्रोटेस्टेड. दैट्स व्हाई वो शादी जो है टिक गया. बट आज के जमाने में वो नहीं हो रहा है, बिकॉज द गर्ल्स आर रिप्लाइंग जो होना चाहिए. नाउ सिंस द टाइम हैज चेंज्ड, your approach should be also changed. तो compatibility तो मैच हो रहा है, बट शादी सिर्फ और सिर्फ compatibility के ऊपर तो चलता नहीं है. क्योंकि पहले के जमाने में कैरियर नहीं था. There was very smooth career. आपको IT सेक्टर्स पे जाके काम करने नहीं होते थे. आप खेत खमार में काम करते थे या फिर कोई दुकान था, कुछ था, नॉर्मल हैंड प्रोडक्ट से 7 बजे के बाद घर. लाइफ वाज सिंपल. बट आज के डेट में लाइफ इज नॉट सिंपल. तो सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिबिलिटी से आप काम नहीं चलेगा, आप अदर एस्पेक्ट्स को भी देखने होंगे कि फाइनेंशियल पार्ट्स ठीक है कि नहीं, माइंडसेट मैच हो रहा है कि नहीं, हेल्थ कैसा रहेगा, कहीं बच्चे का कोई जेनेटिक डिजीज तो नहीं होगा. दैट्स व्हाई गुण मिलान इज इम्पोर्टेंट. पहले के जमाने में हमारे पास ब्लड टेस्ट नहीं होते थे, लेकिन कुंडली देख के हम बता सकते थे कि अगर इन दोनों की शादी हुई, उनके बच्चे हुए, तो उनको कोई डिजीज होंगे कि नहीं होंगे. अभी भी ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं? Yes, definitely. ये प्रॉपर एस्ट्रोलॉजी कैन डेफिनेटली प्रेडिक्ट दिस. मेडिकल एस्ट्रोलॉजी नाम का एक चीज है जिसके ऊपर बेस करके आपको कब, आई हैव एटलीस्ट 500 प्लस डॉक्टर्स एज माय क्लाइंट्स. वो खुद आते हैं मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए फॉर देयर मेंटल सपोर्ट एंड अदर सपोर्ट्स. एब्सोल्युटली. तो आयुर्वेद कहाँ से आया? ज्योतिष से आयुर्वेद आया है. और आज आयुर्वेद के ऊपर ही पूरा मेडिकल साइंस खड़ा है. यस.
ही इज जस्ट वी द एडुकेटेड पर्सन लाइक मी, जो कभी एस्ट्रोलॉजी को जानने की कोशिश ही नहीं की। सो आई इनवाइट ऑल द पर्सन, बिफोर यू से आई डोंट बिलीव एस्ट्रोलॉजी, प्लीज डू स्टडी, रिसर्च करके देख लो उसके अंदर क्या है, देन यू टेल मी ओके यू डोंट बिलीव। और अगर आंसर नहीं मिल रहा है तो प्लीज फाइंड इट आउट द आंसर, क्योंकि विज्ञान के सारे क्वेश्चन का आंसर भी तो यूं नहीं मिलते थे, एब्सोल्युटली, बहुत ढूंढना पड़ा फिर जाके मिला, है ना। ट्रू। एस्ट्रोलॉजर्स फ्रॉड हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी फ्रॉड नहीं है। अब फ्रॉड्स तो हर फील्ड में है, अब मेडिकल में भी मिल जाएंगे, लॉ में भी मिल जाएंगे, इसका ये मतलब तो नहीं कि मेडिकल साइंस फ्रॉड है। या दैट्स द थिंग। सो यू आर अ रुद्राक्ष स्पेशलिस्ट आल्सो। यस। सो उसके बारे में कुछ बताइए, आपने जेमस्टोन के बारे में नहीं बताया। जेमस्टोन्स के ये मेथड्स होते हैं, 2-3 चीजें हैं जेमस्टोन्स के बारे में। सबसे ज्यादा लिखा गया है बड़ा अमीर का। पहनना चाहिए कि पहनना नहीं चाहिए? बिल्कुल पहनना चाहिए, पहनना चाहिए। अगर आपको जरूरत है तो पहनना चाहिए, बट डिपेंड करता है कि जरूरत है कि नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं कि सिर्फ स्टोन्स लेंगे और बैठे रहेंगे, नहीं, और वो अपने आप सारा काम तो होगा। कॉन्सेप्ट समझना होगा कि स्टोन्स, जेमस्टोन्स का जो रियल नेम है वो Yeah. रत्न धारण है। आपको ये समझना होगा रत्न धारण कौन करते थे, कि पहले के जमाने में राजा महाराजा लोग रत्न धारण करते थे, टू शो दैट आई एम द किंग। तो जेमस्टोन्स का आज भी वही कॉन्सेप्ट है, अगर मेरे पास कुछ है, मुझे उसको और बढ़ाना है, देन यू शुड वेयर द जेमस्टोन्स। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक छोटा सा दुकान है खाने का, फास्ट फूड का, अब मुझे इसको रेस्टोरेंट बनाना है, जो प्लेनेट मुझे उस पर्टिकुलर फील्ड में लेके जा रहा है उस प्लेनेट का स्टोन पहनना, तो आपको ग्रोथ मिलेगी। अब इसमें भी क्वेश्चन ऑथेंटिक स्टोन होनी चाहिए, इसमें बहुत फ्रॉड होता है। यस यस एब्सोल्युटली। अभी मुझे नौकरी नहीं कैसे मिल पता रहा है, चलेगा स्टोन्स इसके लिए real है आपको कि यू नहीं है? हैव टू स्टडी जेमोलॉजी, जेम्बोलॉजी। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। या तो आप बहुत ही ट्रस्टेड वेंडर के पास जाओ, यस। जब और क्वेश्चन करो उनसे, जैसे जब हम एस्ट्रो आंसर से कुछ प्रोवाइड करवाते हैं, वी गिव इट इन रिटर्न। अगर कोई भी ऑथराइज्ड जेमस्टोन्स डीलर या फिर जेमस्टोन्स लैब उसको आपको लिखित में दे दे कि ये फेक है, विल रिटर्न द एंटायर मनी यू स्पेंड एंड विल गिव 10,000 इन बोनस। ओके। क्योंकि हम जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से टेस्ट करवाते हैं हमेशा, और मैं खुद एक एक स्टोन को टेस्ट करवाने के बाद ही किसी को देता हूँ, है ना। दैट्स द पॉइंट ऑफ वेयरिंग स्टोन्स। अब ये स्टोन्स हमेशा सेम नहीं रहते, आपको ग्रह दशा के चेंजेस के साथ स्टोन्स को चेंज भी करने होते हैं, बट ओनली इन द केस मुझे इस चीज को इंक्रीज करना है। एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन मैंने होते हुए देखा है, किसी का अगर एक्सीडेंट होने को है, मंगल खराब है, उसको कोरल पहना दिया जाता है, तो इससे मंगल आपका ठीक नहीं होगा। स्टोन पहनाने का मतलब है उस पर्टिकुलर प्लेनेट को और स्ट्रेंथ दे देना। तो अगर मंगल आपका खराब है, आपने कोरल पहन लिया तो और खराब होगा, तो आपको एक्सीडेंट से नहीं बचाएगा, वो एक्सीडेंट करवाएगा, वो और ज्यादा करवाएगा। तो अगर शनि से आपका एक्सीडेंट हो रहा है, तब आपको मंगल का कोरल पहनना चाहिए, बिकॉज मार्स ओवर पावर्स सैटर्न, दैट्स द ग्रामर ऑफ स्टोन। But okay, this was about gemstones and all. There are various misconceptions about Rudraksh also. जी। And कई लोगों को मैंने देखा है, सुना है कि सबको रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए, उसके बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, मैरिड लोगों को रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। इसका क्या कॉन्सेप्ट है? हर कोई रुद्राक्ष पहन सकता है, मैरिड अनमैरिड irrespective of their age. Yes, everyone can wear रुद्राक्ष। Okay. रुद्राक्ष पहनने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, रूल्स बहुत सारे हैं that we have to follow. We have to follow शिव that. पुराण में कुल 113 रूल्स ऑफ रुद्राक्ष लिखा गया है। आज की डेट में वो सारे फॉलो करना पॉसिबल नहीं है, बट एटलीस्ट जो मैंडेटरी रूल्स है वो आपको फॉलो करने ही होंगे, अदरवाइज रुद्राक्ष आप पहनोगे उसका आपको नेगेटिव फीडबैक्स होंगे। ओके। जैसे रुद्राक्ष पहन के कभी भी आपको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, कभी भी आपको अल्कोहल एंड स्मोक्स नहीं करने चाहिए। अब जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो भी रुद्राक्ष पहन सकते हैं, लेकिन अगर आप नॉनवेज खा रहे हो तो आपको रुद्राक्ष को उतार के खाना चाहिए। रुद्राक्ष पहन के कभी भी सूतक वाले जगह पे नहीं जाना चाहिए, जैसे न्यू बॉर्न हो गया, क्रिमेशन सेरेमनी हो गया। रुद्राक्ष को पहन के नहाते वक्त आपको उतारना चाहिए, उसकी पानी पैर में नहीं आनी चाहिए। बट अगर आप प्रॉपर सात्विक भोजन करते हो, नॉनवेज नहीं खाते हो, इन दैट टाइम आप नहाते टाइम भी पहन के जा सकते हो, क्योंकि आपका शरीर शुद्ध है। ओके। सो देयर आर सर्टेन मेथड, सर्टेन 1 से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं, उसमें भी बहुत फ्रॉड्स होते हैं। अगर आप रुद्राक्ष खरीदते हो, प्लीज बी एडुकेट फर्स्ट। शिव पुराण का PDF अवेलेबल है, देख लो रुद्राक्ष कैसे होते हैं, आसान है, रॉकेट साइंस तो नहीं है ना।
थोड़ी बहुत अगर आप रिसर्च कर लोगे आपको भी आ जाएगा। That precautionary measures Right. are needed in everything. Yes. ताकि मतलब आगे जाके कुछ Yes. प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। So apart from astrology consultation, you do vastu Yeah. consultation as well. So एक क्वेरी जो बहुत सारे लोगों ने मुझे ऑलरेडी पूछ के रखा है when they came to know that I am going to shoot an interview with you. Vastu tips for married couples for you know that to bring that harmony in the relationship for better future, एक अच्छा compatibility के लिए उसका क्या हो सकता है? सबसे पहले वास्तु में बहुत सारे लेयर्स होते हैं, you have to understand the layers. Okay. पोजिशनल वास्तु, डायरेक्शनल वास्तु एंड आपकी कलर थेरेपी। कलर थेरेपी। आज के डेट में अगर मैं किसी को ये बता दूं कि साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट में ही आपका बेडरूम होना चाहिए, तो नॉट रियली पॉसिबल फॉर एवरीवन टू फॉलो दिस, क्योंकि फ्लैट्स में रहते हैं, फ्लैट्स में पॉसिबल छोटी जगहों में। मैं इतने सारे विजिट्स करता हूँ वास्तु का, तो वहाँ पे आपको नहीं मिलता एग्जैक्ट उस पोजीशन। बट मेक श्योर वास्तु तभी आपका ठीक हो जाएगा जब आप अपने प्लैनेट्स को ठीक कर लोगे। ओके। इफ यू कैन कंप्लीट योर वैनस, इफ यू कैन ट्रीट योर वैनस गुड, आपका वास्तु ठीक हो जाएगा। वास्तु बेडरूम के लिए बेस्ट पार्ट है साउथ वेस्ट। ट्राई टू हैव द साउथ वेस्ट बेडरूम। अगर साउथ वेस्ट में आप सो सकते हो, मैरिड कपल्स के लिए बहुत अच्छा होता है। साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट नहीं, डॉट साउथ वेस्ट। ओके ओके, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आगे भी कर सकते हो। साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट में जाते हो, अगर इफ यू आर लिविंग ओनली द कपल्स देन ओनली, अगर आपके पेरेंट्स जीवित है तो साउथ वेस्ट। ओके। अगर आपके पेरेंट्स जीवित नहीं है, अगर आपके एंसेस्टर्स नहीं है, तो आपको साउथ वेस्ट में वास्तु का बेडरूम रखना चाहिए। और एग्जैक्ट साउथ वेस्ट में आपको अपने पास्ट जितने भी एंसेस्टर्स हैं उनके पिक्चर्स लगाने चाहिए, क्योंकि एग्जैक्ट साउथ वेस्ट डॉट जो है अपने एंसेस्टर्स के होते हैं। अच्छा, एंसेस्टर्स का पिक्चर्स में भी वो डायरेक्शन होता है ना? सपोजिंग इन द डायरेक्शन मैटर्स द मोस्ट। साउथ वेस्ट में एंसेस्टर्स की पिक्चर्स हम लगा सकते हैं। Those who are not, obviously they are not alive, right. And those who are alive, वो हम किस डायरेक्शन? ईस्ट डायरेक्शन लगा दो, वो कहीं पर भी लगा दो, ईस्ट वेस्ट कहीं पे भी लगा सकते हो। अगर आपको अपना फैमिली को ठीक करना है, हाँ, कि फैमिली में बॉन्डिंग्स नहीं है, तो हाँ, अपना फैमिली पिक्चर नॉर्थ वॉल पे लगा दो। फैमिली पिक्चर, 2 फैमिली पिक्चर नॉर्थ वॉल पे लगा दो। नॉर्थ वॉल पे, या तो फैमिली पिक्चर्स में सारे मेंबर्स आपको एक साथ नहीं मिल रहे हैं, हाँ, तो आप भगवान शिव जी के पूरा शिव परिवार जो है उसको नॉर्थ वॉल पे लगा दो। क्योंकि नॉर्थ जो है कैलाश को डायरेक्ट करता है, और शिव परिवार फुल होना चाहिए विद देयर एनिमल वाहन। फुल शिव परिवार होना चाहिए, उसको आप नॉर्थ वॉल पे लगा दो, आपके फैमिली के साथ कनेक्शंस बनना ठीक हो जाएंगे। ओके ओके। फॉर द कपल्स, आपने वास्तु से पूछा, आई वांट टू शेयर अनदर वेरी पावरफुल रेमेडी। जैसे बहुत से मेरे पास भी क्वेश्चंस आते हैं कि आजकल के डेट में इतना बिजी शेड्यूल होता है, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को लेके इश्यूज होते हैं। यस, सो दिस इज फॉर दैट माइनर प्रॉब्लम्स। अगर ये बात सेपरेशन तक चला गया तो ये रेमेडी काम नहीं करेगा, लेकिन जितना छोटा मोटा आपका दिक्कत चल रहा है उसके लिए रेमेडी बहुत काम करेगा। क्या करना है आपको? 2 कागज लेना है, व्हाइट पेपर्स, जिसके साथ आपको तकलीफ है उनका नाम रेड इंक पे लिखना है। रेड इंक से लिखना है, और आपके खुद के नाम को आपको ग्रीन इंक से लिखना है। ओके, इन दैट सेम पेपर? नो, 2 डिफरेंट पेपर्स। छोटे 2 टुकड़े लेना चाहिए। पहले में जिसके साथ प्रॉब्लम उनका नाम लिखो, हाँ। सेकंड में इन ग्रीन इंक खुद का नाम लिखो, okay. और दोनों को हनी के कटोरी पे या फिर हनी के जो आपके बॉटल्स आते हैं, हाँ, उसमें डाल दो और नॉर्थ ईस्ट पे रख दो। विद इन 7 to 8 days आपको उस पर्टिकुलर पर्सन से फोन आ जाएगा, फिर उनसे आपका कुछ ना कुछ बात हो जाएगा। ओके। सो दिस पर्टिकुलर मेथड इज रिटन इन पराशर शास्त्र। ओके। वन ऑफ द एंशिएंट रेमेडीज। यस। लेकिन इंक का मतलब आज के जमाने में हम पेन यूज करते हैं, उस टाइम पे वो लोग फ्रूट्स को यूज करके लिखते थे, बट इट्स ओके, वी कैन यूज पेन ओनली। इट्स अ टेस्टेड रेमेडी, मैंने बहुत लोगों के ऊपर ये दिया हुआ है और ये काम करता है। इट वर्क्स। यस, मैजिकली दैट वर्क्स। ओह माय गॉड। बट यू टेल मी समथिंग कि आजकल जो मेन चीज है दैट इज शुक्र, राइट। बहुत सारे लोगों का शुक्र खराब होता है, राइट। तो एक इंसान को क्या ऐसा करना चाहिए कि उनका शुक्र अच्छा हो जाए? अगर वो मेल है, सो बिहेव विथ योर वाइफ वेरी जेंटली, क्योंकि वाइफ जो है आपके शुक्र का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। इफ यू कैन ट्रीट हर वेल, आपके शुक्र ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। ओके। सेकंड होता है यूज गुड परफ्यूम्स। वेनस रिप्रेजेंट्स परफ्यूम्स। जैस्मिन की परफ्यूम यूज कर सकते हो, रोज का परफ्यूम यूज कर सकते हो, आपके शुक्र को ठीक करेगा। छत अगर आपका या बालकनी है, उसमें आप कैक्टस टाइप के
पौधे ना लगाओ। अगर आप Okay. कैक्टस टाइप के पौधे लगाओगे वहाँ पे छत के ऊपर या फिर बालकनी पे तो आपका शुक्र खराब होगा। या फिर बेडरूम पे भी आपको सेंटेड प्लांट्स लगाने चाहिए। उल्टे सीधे प्लांट्स लगाओगे तो शुक्र को खराब करते हैं। अगर आप गारमेंट्स को विदाउट वॉश घर पे रख देते हो तो भी आपका शुक्र खराब करता है, क्योंकि गारमेंट्स जो है शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। एनी पर्टिकुलर रीजन कि शुक्र क्यों खराब होता है? ओनली बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि हम लोग वो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते हैं वेनस कभी। बहुत ही हैप्पी प्लेनेट है। वेनस का काम है लग्जरी देना। Oh, वेनस का काम है आपको समृद्ध बनाना। yes. सो व्हेनेवर यू डोंट फॉलो दिस, वेनस गेट्स ऑफेंडेड, क्योंकि वेनस लक्ष्मी है। एंड सी हाउ लक्ष्मी सिट्स, उनको क्या चाहिए। Yeah. So the moment you don't make your surroundings where Lakshmi can come and sit, Lakshmi will go away. So your Venus. Okay. So Shukra जैसा is like very important for for everyone's life. Same goes like Rahu. राहु क्यों खराब होता है? अगर किसी का खराब भी है तो उसको सही कैसे कर सकते हैं? कैसे पता चलेगा कि उसका राहु डाउन चल रहा है? राहु अपने आप में एक बहुत ही इल्यूशन वाला प्लैनेट है, मिरेकलियस प्लैनेट है। 9 ग्रह में अगर मैं किसी से सबसे ज्यादा डरता हूँ राहु है, क्योंकि आप हर एक प्लैनेट्स को कंट्रोल कर सकते हो। Yes. राहु को कंट्रोल नहीं कर सकते। राहु एक ऐसा प्लैनेट, Very aggressive. नॉट एन एग्रेसिव वन, वो बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक है, साइको है। राहु एग्रेसिव नहीं है, मंगल एग्रेसिव बनता है। काम बिगाड़ देता है। हाँ, और Yes. साम दाम दंड भेद। राहु का काम है जीतना, किसी भी हद पे वो जीत सकता है। Yes. अब सारे ग्रहों को कंट्रोल करने वाला सूर्य होता है, राहु उसमें ग्रहण लगा देता है। Oh, सारे प्लेनेट का जो गुरु है जुपिटर, राहु उसमें चंडाल दोष लगा देता है। okay. तो राहु को आप ठीक नहीं कर सकते। राहु अगर आपका पैसिव है, एग्रेसिव है, इन बोथ ऑफ द केस आपको वो तंग करेगा। राहु को ठीक करने का एक ही रेमेडी हो, केतु को सुधारना है। राहु की रेमेडी हमेशा केतु से होती है। Okay. And उसका क्या रेमेडी है? आई एम कमिंग बैक। और राहु खराब कब होता है? मैंने देखा है राहु को ओट्स रिजल्ट देते हुए, हाँ. इफ 1% स्पेशली द वुमन, हाँ. अगर वो एबॉर्शन करवाती है। Oh, okay. क्योंकि अगर आप एबॉर्शन, क्योंकि एबॉर्शन जो केतु है, अगर आप एबॉर्शन करवाते हो, राहु विल रूइन योर कैरियर एंड मेंटल पीस एंड फैमिली लाइफ व्हेनेवर हिज टाइम विल कम। क्योंकि राहु का जो आराध्य है वो सरस्वती है। ये अगर आपने कर दिया, इट्स अ पार्ट ऑफ पेंडिंग कर्मा आई एम शेयरिंग, क्योंकि हमें दिख जाता है चार्ट में कि आपने मिसकैरेज हुआ है या फिर एबॉर्शन किया हुआ है। इन दैट केस वी कांट हेल्प यू। वो होता है तो वो आपके करियर को खराब करेगा ही करेगा। अच्छा, इफ इट इज लाइक दिस, कोई मैरिड वुमेन, अगर ऐसा सिचुएशन आए लाइफ में कि उनको मिसकैरेज हो गया है, मिसकैरेज इज डिफरेंट थिंग, वो नेचुरल होता है। दैट्स नेचुरल। नेचुरल में कोई वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आता है किसी किसी के लाइफ में कि उनको अबॉर्शन करवाना पड़ता है। सो इन दैट केस इट्स इज इट लाइक अगर आपके हेल्थ के ऊपर वो बात आ रही है, या that time you have done abortion, yes. there are certain remedies we can take forward. Okay. अगर वो और कुछ भी रीजन है, in that case astrological remedies not going to help you. क्योंकि माँ से ज्यादा सेफर ऑप्शन कुछ नहीं होता है। Absolutely. और अगर माँ ने ही वो काम कर दिया, then we have no right to protect you. वो अति महापाप में काउंट होता है। वो अति महापाप में काउंट, पाप के बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। Yes. जो पाप हो गया, महापाप, अति पाप, वो अति महापाप में आता है। There's a little एक पार्ट में बताता हूँ अति महापाप को डिस्क्राइब करने के लिए। छोटा सा ही मैं टाइम लूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इसमें। कि माँ पार्वती वाज आस्किंग टू शिवा कि व्हाई डिडंट यू फॉरगिव रावणा। आपने इतने सारे असुर को क्षमा कर दिया है, बट रावण जो आपका इतना बड़ा भक्त है, जिसने 10 रुद्रों को एक्टिवेट कर लिया था अपने सिर को काट काट के पूजा करके, आपने उनको क्यों क्षमा नहीं किया? तो शिव जी कहते हैं कि मैं अति पाप तक किसी को क्षमा कर देता हूँ। अगर रावण सिर्फ और सिर्फ सीता को हरण करता, मैं उसको क्षमा कर देता। लेकिन रावण ने सीता को साधु के वेश में हरण किया है। तो जितने भी साधु कम्युनिटी है, ये मॉन्क का कम्युनिटी है, उसने उसको बदनाम कर दिया है। Okay. आज के बाद कोई भगवान में साधुओं के ऊपर यकीन नहीं रखेगा, इसलिए अति महापाप में काउंट होता है। That's why I can't forgive him. तो जब एक माँ एबॉर्ट करती है किसी को, माँ के हाथ से अपने बच्चे की मर्डर हो रहा है, इट्स अ काइंड ऑफ मर्डर ऑन मर्डर, या तो ये अति महापाप में काउंट होता है। जिसका क्षमा मेरे महाकाल नहीं करते, तो मैं कहाँ से उनका रेमेडी दूंगा? यस, ट्रू।
So, moving on to the next point. So, do you have any switch word to attract money, No, fame, love? no, I don't have any switch word. Do you? So, not just me. I know the entire India wants to know कि love attract करने के लिए, fame या फिर money attract करने के लिए ऐसा कोई powerful switch word नहीं होता है actual में. मैं बिलीव नहीं करता हूँ ऐसा होता है. Okay. हो सकता है, हाँ. आई डोंट नो, मे बी The मेरे switch नॉलेज word के बाहर. works. Do you? मेरे हिसाब से तो नहीं करते. नहीं करते. मैं अगर कहने लग जाऊं कि मुझे पैसा मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है. ऐसा But होता it's like, you know, it's like affirmation also ना. अगर मैं सारा दिन अगर बोल दूं कि मुझे पैसा आप बोल, पैसा आ रहा है, पैसा बोलने आ की रहा क्या है, पैसा जरूरत आ है, रहा काम ही कर लेते हैं ना उसके लिए. देयर आर सर्टेन थिंग्स जो लिखे गए कि पैसे कमाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए रेमेडीज बताए गए हैं, वो करना चाहिए. But manifestation works, right? मैनिफेस्टेशन इज डिफरेंट थिंग. Okay. मैनिफेस्टेशन को स्विच वर्ड के साथ कंफ्यूज मत कीजिए. मैनिफेस्ट करना अपने आप में साधना है, वो मेडिटेशन है. Yes. क्या मैनिफेस्टिंग दिस है, बस एक बार कहने से मैनिफेस्ट नहीं होता है. मैनिफेस्ट करने के लिए आपको प्रॉपर रिचुअल में जाना होता है ना. मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या है? एक्सेप्टेंस. That I'm accepting whatever prayer I am sending to the universe, that will work. That is a faith. And It's universe a part of faith. responds. Yes, universe definitely responds. Yes. Law of attraction, that exists. There's a very good book. I recommend all of you, The Secret. वो बुक आप पढ़ो, हर किसी को मैं सजेस्ट करता हूँ. That book is very good in terms of law of attraction. वो आपको समझाएगा law of attraction क्या है. Okay. स्विच वर्ड से आपको पैसा नहीं मिलने वाला है, ना ही लव अट्रैक्ट कर सकते हो. Okay. That I can challenge you. अगर मिल रहा है, all the best. But मुझे मेरे अंदर पे वो नॉलेज नहीं है. आपने रेमेडी पूछा, मैं रेमेडी जरूर बताऊंगा. Yes. Pyrex is one of the very good metallic stone basically, To जो attract मनी money. मैग्नेट करते हैं. अब ये बताओगे कि ये कैसे करेगा? वो आपके सोच को बदलता है. ये जो आप मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हो, वो आपके सोच को बदलता है. मैंने भी पायरेट्स बहुत पहने हैं. मैंने That भी पहना है. works. Yes, Pyrex works. एंड अगर आपको पैसों को कमाने के लिए रेमेडी चाहिए, जो हमारे वैदिक रेमेडी है, जो पराशर शास्त्र में लिखा गया, दैट वन रेमेडी आई कैन शेयर यू विथ. दैट रेमेडी वर्क्स. Okay. रेमेडी क्या है? शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार से आपको ये स्टार्ट करना है. Okay. 7 घी की दिया लेना है. देसी घी का दिया होना चाहिए 7. Okay. शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार संध्या के टाइम पे, एग्जैक्टली गोधली के टाइम पे, द सन सेट्स एंड द मून इज नॉट येट कम इन द स्काई. Okay. जब मिड पॉइंट होते हैं उसी टाइम पे Yes. महालक्ष्मी के लिए, माँ लक्ष्मी के नाम पे आपको 7 दिए जलाने हैं. और वो 27 शुक्रवार आपको ये परफॉर्म करना है. 27 शुक्रवार. Yes. This particular ritual will clean up all the blockages and that will give you multiple abundance. Effective. Yes. This is written in our Parashar Shastra. Okay. That you people do and I believe you will get some result. अच्छा, you tell me one thing. मांगलिक दोष अगर सपोजिंग किसी की कुंडली में है, तो in that case that particular women or men should get married to मांगलिक only? Tricky question. मांगलिक दोष बहुत तरीके के होते हैं. Okay. बहुत बड़ा एक मिसकॉन्सेप्शन है आजकल मैं देख रहा हूँ. बट ये मिथ में तोड़ना चाहता हूँ कि अगर मांगलिक किसी दूसरे मांगलिक के साथ शादी नहीं करते हैं तो दूसरा वाला मर जाएगा. जाता है. ऐसा नहीं होता है. Okay. That doesn't happen. It only happens if one is अष्टमश मांगलिक, मतलब आपका मंगल अगर 8th हाउस में है और दूसरे का मंगल अगर नीच का है, only in that case at some extent, उसमें भी कंडीशन है कि जुपिटर के एस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए. जुपिटर का एस्पेक्ट आ जाता है तो ब्रेक हो जाता है. Only in this case this particular line is correct. Otherwise 80% केस में आपको लोग मांगलिक मिलेंगे. मांगलिक होना बहुत अच्छी बात है. हमारे मांगलिक अगर बनते हो, वो रोचक महापुरुष आजू भी बनता है, फर्स्ट हाउस का मंगल. Okay. वो आपको बहुत हाई पोजीशन पे लेके जा सकता है. मांगलिक का मतलब ही, और मार्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड मार्स वांट यू टू वर्क ऑन एन एग्रेसिव नोट. Okay. सो इट विल मेक यू वेरी सक्सेसफुल इन योर करियर. Okay. है ना. तो मांगलिक को मांगलिक के साथ ही शादी करना है, नॉट रियली इम्पोर्टेंट. तो एक मांगलिक या नॉन मांगलिक शादी कर सकते बिल्कुल कर सकते हैं. एंड अगर ऐसा कुछ है कि अगर कोई मांगलिक है, एंड वो भी बोला जाता है ना कि पहले पेड़ से शादी करो या फिर एनी एनिमल से शादी करो, तो वो दिस इज अगेन अ वेरी स्टूपिड रेमेडी फॉर मी. क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि नारायण के साथ शादी करते हैं. यस यस. तो आपको क्या लगता है कि आज इतने आप काबिल हो कि आप नारायण के साथ शादी कर सकते हो? जिनकी शादी मैं नारायण के साथ देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या उनमें लक्ष्मी जैसी क्वालिटी है?
क्या वो पाप नहीं हो रहा है? क्या आप साक्षात नारायण के साथ उनकी शादी करवा रहे हो? व्हाट काइंड ऑफ रेमेडी दैट कुड बी? यस, पेड़ के साथ शादी करके उसको काट दो, व्हाई? does उसने this क्या really गलती किया? work? Because you know Yes. I have seen That many doesn't really cases. work. उसमें कुछ नहीं होता है। वो महाभारत में एक स्टोरी है इसके हिसाब से। गांधारी जो है वो मांगलिक थी, तो एक ज्योतिष ने कह दिया था अगर आपकी शादी उनसे हो गया तो आपके जो पति वो मर जाएंगे। तो गांधारी ने क्या किया, एक बकरे के साथ शादी कर लिया था। उसके बाद उस बकरे को काट दिया गया। लेटर ऑन व्हेन धृतराष्ट्र केम टू नो कि गांधारी मैरिड टू बकरा फर्स्ट, और ये बात उनसे छुपाई गई, तो धृतराष्ट्र ने उनकी पूरी जो खानदान है गांधार का, वो खत्म कर दिया था आउट ऑफ अ रेज। एंड दैट वाज द पॉइंट जब गांधार नाज शकुनी ने शपथ लिया था कि मैं कुरुवंश को खत्म कर दूंगा। एंड देन ही अपने घुटने पे अपने चाकू से वार करके उस अपने आप को लंगड़ा कर दिया था। दिस विल कीप मी रिमाइंडिंग कि आई हैव टू क्लीन द एंटायर कुरुवंश, एंड ही डिड इट एट द एंड। दैट्स द इफेक्ट। अगर आप इस सर्टेन टाइप ऑफ रेमेडीज करते हो तो नतीजा इस टाइप का होने की भी चांसेस है। दैट्स नॉट अ गुड रेमेडी फॉर मांगलिक। अगर मांगलिक की रेमेडी करनी है, स्कंद पुराण ये कहता है उज्जैन महाकालेश्वर में मंगलनाथ का एक मंदिर है, मंगलनाथ का एक मंदिर है, तो वहाँ पे पूजा करने से इट वर्क्स। स्कंद पुराण में लिखा है। ओके, मैंने बहुत लोगों का करवाया है एंड दे आर हैप्पीली मैरिड। ओके, पता नहीं क्या रिचुअल है वो। आपका भात पूजन, अगर आप कभी जाते हो उस जगह पे, बहुत ज्यादा वाइब्रेशन है, अलग ही एक वाइब्रेशन है उस मंदिर में, अंगाकरेश्वर महादेव मंदिर। सो यस, दैट वर्क्स। एक जो इट्स लाइक आई थिंक दिस इज अ ग्लोबल क्वेश्चन फॉर एवरीवन कि जिनका सपोजिंग शादी का बहुत लेट शादी हो रहा है या फिर शादी नहीं हो रहा है इवन आफ्टर रीचिंग द एज ऑफ 34, 35 और समथिंग लाइक दैट, तो इसके लिए कुछ ऐसे उपाय होता है जो वो करने से रिश्ते आते हैं या फिर जल्दी शादी होता है? हाउ इट वर्क्स? आई मीन, इज दैट रियली वर्क्स? दैट डेफिनेटली वर्क्स, बट दैट हैज टू बी रियली स्पेसिफिक। ओके, हाउ? वो जनरल नहीं होता है। इन जनरल कोई रेमेडी मैंने कर लिया हो गया, ऐसा नहीं है। वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, कुंडली के हिसाब से। एक पॉइंट है जो मैं बताना चाहूंगा, दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन इन टुडेज वर्ल्ड। पितृदोष। पितृदोष। इन माय पर्टिकुलर एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ मैंने देखा है कि जिनका भी शादी इतना लेट हो रहा है, एक होता है नेचुरली लेट होना, वो कैसे पता चलता है पितृदोष? कुंडली देखने के बाद ही पता चल जाता है। सैटर्न इन द 7th हाउस, आपकी शादी लेट ही होगी। लेकिन अगर ये सब ना होने के बाद भी शादी लेट हो रहा है, बहुत हाई चांसेस है कि यू आर हैविंग अ पितृदोष। ओके, जब ये पितृदोष है तो शादी लेट होती है। पितृदोष क्यों होता है? आपके एंसेस्टर के जो लास्ट वर्क्स होते हैं, क्रिमेशनल वर्क्स होते हैं, वो ठीक से नहीं हुआ होगा, अस्थिया विसर्जन ठीक से नहीं हुई होगी। ओके, तो वहां से पितृदोष दिखी जाती है। और भी कई तरह के पॉइंट्स होते हैं जिससे पितृदोष का पता चलता है। So that is the main reason कि one of the main reasons. Okay. और भी reasons होते हैं, but it is one of the main reasons. So according to you, we should not do any general remedy. No. It should be like from person to person or obviously. from कुंडली के हिसाब से। क्योंकि रेमेडी कई बार बैकफायर करता है। Oh. एक आजकल मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही हो रहा है, that is your black magic. कैसे पता चलेगा कि कोई अगर किसी के ऊपर या फिर हमारे ऊपर black magic कर रहा है, and how to avoid that? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये पता लगना तो पहली बात है, बहुत मुश्किल है। ओके, इफ समवन इज डूइंग ब्लैक मैजिक ऑन यू, वो मुश्किल वो है। तो कुछ चीजें सही नहीं होता है, सही नहीं होता, वो और भी रीजन की वजह से हो सकता है। वो एट ए ग्लांस देख के बताना ब्लैक मैजिक है, वो नॉट पॉसिबल। यू नीड अ प्रॉपर स्टडी, हाथ देखना होता है ठीक से, तो तभी पता चलता है कि अच्छा ब्लैक मैजिक हो रहा है नहीं हो रहा है। बट एक कॉमन चीज ये है कि आपके फेस में ऑल ऑन ए सडन स्कार्स आना शुरू होता है। Oh, is it so? Yes. So how? Like either private parts में suddenly you will see some certain carcasses are coming. हाँ. Or the in the face. Face में आपको दिखेगा suddenly जो है moles या फिर scars आना शुरू हो रहा है बार बार। Oh my God. So that is a combination all on a sudden, मतलब कोई reason pimples? नहीं है. No. Not pimples. Scars. Scars मतलब मुझे like pigmentation. Right. So this is a point जिसमें आपको ब्लैक मैजिक देखने की चांसेस मिलता है। So is it like that? Is it possibility है कि सिर्फ फेस पे ही दिखे हो, किसी के हाथ पे पैर पे भी हो सकता है, पैर में भी हो सकता है। But merely we focus on the face. The face represents the moon. Okay. And एक और चीज है बर्निंग।
सडनली बर्न होना ऑन अ रैंडम नोट, बहुत बार बर्निंग शुरू हो जाना, किचन में काम करते हुए बर्निंग हो जाना या फिर कुछ करते हुए बर्निंग हो जाना, सो दैट्स अनदर बिग इंडिकेशन यू आर मे बी अ विक्टिम ऑफ सम ब्लैक मैजिक. हाउ टू अवॉइड इट? देयर आर सर्टेन थिंग्स, शक्ति कवच है, कुछ भैरव मंत्र पाठ है, वो सारी चीजें आपको करनी होगी. वो डिपेंड करता है किस टाइप के प्रयोग की गई है. Does Mahamrityunjay mantra chanting helps? नो, नॉट इन टर्म्स ऑफ Not ब्लैक in मैजिक. black magic. महामृत्युंजय मंत्र इज मेड टू हील योर बॉडी. वो स्पेसिफिक है बहुत, वो इन जनरल रेमेडी इज वेरी रिस्की. मैं बता दूंगा ओवर द स्क्रीन लोग कर लेंगे तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है. तो वेरी स्पेसिफिक होना चाहिए किस टाइप का चीज हो रहा है. Okay. कई तरह की चीजें होते हैं, उसको अवॉइड करने के लिए भी हमारे पास अदर ऑप्शंस है. सो दैट वी शुड बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट. स्पेसिफिक, जनरल नहीं हो सकता है, इसका जनरल Not रेमेडी नहीं है. नॉट रियली. अगर आपको ऐसा फील हो रहा है, एक कोई general एक्सपीरियंस remedies- है आपका इस बहुत चीज है. में? एक नहीं है, रैंडम ऐसे क्लाइंट्स. एनी वन यू कैन शेयर? ये शेयर में इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि लोगों को लगता है आई एम मेकिंग स्टोरीज. ओके. ये पिकुलियर ही है. सो आई रिमेम्बर वन ऑफ अ गर्ल नियर अबाउट, काफी छोटी एज की, शी केम टू मी और उनका एक प्रॉब्लम था कि ऑल ऑन ए सडन हर पेरेंट्स स्टार्टेड ड्रिंकिंग टू मच. बोथ द पेरेंट्स? ओके. मुझे ऐसा कुछ नहीं था, वो बहुत सात्विक थे. ऑल ऑन ए सडन वो शराब पीना शुरू कर थे और गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं रात भर. और जब ये दिन बढ़ता चला गया उसको अपने घर में स्मोक की वो आ रहा था, एज इफ समवन इज स्मोकिंग, और उसको किसी की आवाज भी सुनाई देते थे अपने घर में. एंड ऑल ऑफ देम सडनली स्टार्टेड गेटिंग थिनर. पूरी तरह से एकदम बोन लाइक बॉडी हो गया, स्किनी हो गया. दैट्स व्हेन आई सॉ, मुझे दिखा कि ये पिशाच बंधन है. पिशाच बंधन is a very like वशीकरण? Not वशीकरण. It's one of the notorious method in the black magic world. जो एक certain soul को भेजा जाता है आपको डिस्टर्ब करने के लिए. Oh my God. तो इनको ट्रीट करने के लिए certain methods होते हैं. वो आज भी बहुत फेमस है. कामाख्या में तो बहुत होता है. कामाख्या के साइड पे. बिहार में भी ऐसी कुछ जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है. तो आई हैव मेनी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस. तो उनको हमने ट्रीट किया था. नाउ शी इज डूइंग वेल. लेकिन वो एग्जैक्टली करना होता है जो हम कहते हैं कि यही करना है तो वही करना होगा. देयर इज नो मर्सी. देयर इज सम मेथड्स टू बी फॉलोड. यस. टू इरेडिकेट. राइट. ओके. अच्छा, another very interesting fact which I want to know, and this is my personal question, कि आप जैसे त्रिपुरा से बिलोंग करते हैं, so we have heard lot about माँ त्रिपुरा सुंदरी. जी. Can you please tell each one of us कि it's Tripura Sundari is one of the 51 महाशक्ति पीठ. okay. माँ शक्ति जो है, सती माँ को जब उन्होंने नारायण ने सुदर्शन चक्र से उनकी बॉडी को 51 टुकड़े में डिवाइड कर दिया था, उनका बाया पैर का एक उंगली आके गिरा था त्रिपुरेश्वरी टेम्पल पे. ओके. तो वहीं पे माँ का शिला बना एंड शी इज वेरी वाइब्रेंट. त्रिपुरा सुंदरी का अगर आप पिक्चर देखोगे, थर्ड आई दिखेगा आपको, 3 आई दिखेंगे. और माँ त्रिपुरा सुंदरी 9 ग्रहों का माला बना के पहनती है. शी वेयर्स द गर्लफ्रेंड ऑफ 9 प्लैनेट्स. ओके. और कई ज्यादा मिस्टीरियस है. 2 चीज मैं बताऊँ हाउ त्रिपुरा सुंदरी वाज मेड. वो अगरतला से 50 किलोमीटर दूरी पे उदयपुर पे बना हुआ है त्रिपुरा सुंदरी. ओके. एंड त्रिपुरेश्वरी कहते हैं हम उनको. महाराज धन्यमाणिक्य एक राजा थे वहाँ के, जिन्होंने त्रिपुरा सुंदरी को बनाया था. देयर इज अ वेरी फेमस स्टोरी हाउ पहले ना त्रिपुरा बांग्लादेश का पार्ट हुआ करता. ठीक है, चट्टग्राम से त्रिपुरा कनेक्टेड था. तो ऑल ऑन ए सडन राजा धन्यमाणिक्य को सपना आया माँ से कि बांग्लादेश के एग्जैक्टली याद नहीं है उस जगह पे, विच इज नियर अबाउट 160 किलोमीटर अवे फ्रॉम द प्रेजेंट लोकेशन ऑफ त्रिपुरा, माँ त्रिपुरेश्वरी टेम्पल. वहाँ पे मेरी जो शिला है वो गाड़ी हुई है. गो देयर, फाइंड आउट द शिला, मेक माई आइडल एंड पुट इट देयर. लेकिन यहाँ से यहाँ तक लाने का एक बहुत ही रोचक कहानी है. तो माँ ने ये सपने में कहा था कि यू हैव टू टेक माई आइडल हैंड बाय हैंड. जैसे कि पहले मेरे हाथ में यहाँ पे एक लाइन पे खड़ा है, मैंने इनको हाथ के ऊपर दिया है, फिर एक एक करके वो अपने हाथों से दूसरे हाथ पे इस तरह से चलेगा. एंड दिस इज रिटन इन आवर स्क्रिप्चर्स. हिस्ट्री है वो, मैं स्टोरी नहीं बता रहा हूँ, प्रॉपर्ली ऐसा ही हुआ था. तो राजा ने अपने जितने भी सैनिक थे, जितने भी लोग थे, ऐसे करके पूरा लाइन बना दिया था. टोटल
48 डेज लगा था ये प्रोसेस कंप्लीट होने में। तो मैंने कहा था ऑल ऑन ए सडन जिसके हाथ पे दोगे मैं उनके हाथ से फिसल के नीचे गिर जाऊंगी, पर जहाँ पे मैं गिर जाऊंगी वहीं पे मुझे आप लोगों को मुझे आपको एस्टेब्लिश करना है। सो दैट थिंग हैपेंड। जब वो उदयपुर पे आए उनके हाथ से ये मूर्त जब फिसल के नीचे आ गया और वो 5 डिग्री एंगल में बैठी है माँ, मतलब एंगुलर में है, वो प्रॉपर सिमिलरिटी पे नहीं बैठा है। तो जिस तरह से वो बैठी थी उसी प्रकार से वो बैठ गई। उसके बाद बहुत कोशिश की गई कि माँ की जो मूर्ति उसको सीधा किया जाए, लट सीधा नहीं किया गया था। दे ट्राइड अ लॉट बट वो सीधा नहीं हुआ। उसी प्रकार से 4 डिग्री एंगल पे ही बैठी है माँ वहाँ पे आज भी। ओके। तो आप एक छोटा सा लेक भी है उदयपुर में, उसमें आपको बहुत सारे कछुआ देखने को मिलेंगे। मैनी टॉर्टोइस लिव देयर। इंटरेस्टिंग फैक्ट इज नीचे से माँ की जो मंदिर है नियर अबाउट 20 स्टेयरकेसेस आपको चढ़ने होंगे, फिर आप वहाँ पे जाओगे। तो जब भी उन कछुओं के डेथ का टाइम होता है दे कम आउट फ्रॉम द लेक, दे क्लाइंब अप द स्टेयर्स, दे डू 4 राउंड्स ऑफ द टेम्पल। माँ के मंदिर के सामने जाता है, प्रॉपर वो सर झुका के माँ को प्रणाम करते हैं और वहीं पे उनकी डेथ। ओ आई मीन जिनका डेथ होगा वही वहां से निकल के जाएगा। यस, अदरवाइज दे रिमेन देयर ओनली इन द लेक। जाते ऊपर चढ़ते हैं 3 बट बार। व्हाई इज इट सो, एनी रीजन? ऐसे ही है, शुरू से ऐसे ही चल रहा है। वहाँ पे जाने के बाद प्रॉपर्ली माँ को प्रणाम करने के बाद ही उनका देहांत होता है इमीडिएटली। ओके। उसके बहुत से वीडियोस भी है वायरल हुए हुए, हमने तो आंखों के सामने देखा है कि ऐसा होता है। सो यू विजिट मेनी टाइम्स, शी इज वन ऑफ माय आराध्य, बिंदु साधना त्रिपुरेश्वरी माता। So today's conversation was very meaningful and बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें पता चला। Many myth got busted and अगर आपको भी कुछ ऐसा क्वेश्चन है तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। Sir will definitely respond to you all and you can consult him also personally. And see you all in the next podcast. तब तक के लिए thank you so much. Bye bye. Take care.